in Delhi police, I have no problem. Delhi police have, sir, the shocking thing is that they came without uniform. Now you conclude. Sir, now you 1997 Act, SOP of Delhi police. The Delhi police has to be identified. My demand is that they want to scare, send the fear across the youngsters. Now you conclude. Now I conclude. I want a statement from the Honorable Home Minister as to what has happened. Rajiv Bhattacharya ji. Now, श्रीमान राजीव भट्टाचार्य जी। माननीय सभापति महोदय, आप जानते होंगे कि उत्तर पूर्वी का एक राज्य है त्रिपुरा, जो पिछले सरकार द्वारा शासित कांग्रेस और सीपीएम ने बहुत सालों से ये शासन किया है। आज जिन्होंने जैन जी के बात कर रहे हैं, लेकिन उधर का युवा का भविष्य क्या होगा, उनका रोजगार क्या होगा, उनका साधन क्या होगा रोजगार का। ये कांग्रेस और सीपीएम का सरकार रहते हुए कुछ सुधार नहीं हुआ। और 2014 से आजादी के बाद से मोदी सरकार बनने के बाद उत्तर पूर्वीय क्षेत्रों में खास करके त्रिपुरा की आम जनता हो, जनजाति क्षेत्र हो, मोदी जी ने विकास का कोई कसर नहीं छोड़ा। आपके माध्यम से सरकार को अवगत करना चाहता हूँ। Let him complete, please let him complete. 30% जनजातीय क्षेत्रों का जनजातियों का बास है। इसमें मोदी जी द्वारा स्किल इंडिया मिशन, डिजिटल इंडिया, स्टैंडअप इंडिया, प्रधानमंत्री आदिवासी न्याय अभियान, त्रिपुरा में स्टार्ट हो गया जनजाति युवा को खड़ा करने के लिए मैं आपके माध्यम से सरकार के पास अपील करना चाहता हूँ कि दिस इज नॉट करेक्ट। त्रिपुरा जो इनके लिए रेसिडेंशियल स्किल डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट सेंटर बने, जो ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट है। इसके माध्यम से ये त्रिपुरा की जनजातियों का जो युवा है, इनको रोजगार मिलेगा। स्किल डेवलपमेंट में इनको प्रोत्साहित करने का एक संकल्प होगा। हाल ही में हमारा नरेंद्र मोदी जी का जो मन की बात, जो जनजातियों का असली और त्रिपुरा को दिखाने का काम, अभी मन की बात अनुष्ठान में त्रिपुरा जनजातियों का एक वाद्य यंत्र है, इंस्ट्रूमेंट, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट चैन प्रो, ये सरोज देववर्मा को प्रोत्साहित किया है। मैं पूछना चाहती हूँ, ये कांग्रेस और सीपीएम का बहुत सालों से त्रिपुरा में सरकार थी, तब युवाओं का कुछ नहीं किया। ये मोदी जी आने के बाद त्रिपुरा में युवा जनजातियों का सबका उन्नयन के डेवलपमेंट के लिए काम कर रहा है। मैं आपके माध्यम से ये बात सदन में रखना चाहता हूँ। नमस्कार, थैंक यू भाई साहब। Now, madam, I know why you are recommending. I know LOP very well. Why you are recommending, I am doing it. Now, leader of the opposition, Mallikarjun Kharge ji. सर, जो बेटा ने यहाँ पर उठाया मुद्दा, ये बहुत शर्मनाक है कि एक नेशनल पार्टी के ऑफिस में हम घुस के, अगर सीबीआई के लोग पुलिस ये घुस के जाते हैं, उसको अरेस्ट करने की बात करते हैं। डेमोक्रेसी इज नॉट सेफ, पीपल आर नॉट सेफ। देयरफॉर आई रिक्वेस्ट यू, people who have gone there unauthorized, they should be punished. Why they have gone? Who are they? Who ordered them? You ask your people to sit in there. No, I'm asking, who asked them to go there? Now, Who ordered? now
the honorable leader of the house. That Now is the not leader of the house will reply. That is not the Sir, you have raised your voice. Let the government respond to it. Sir, Let the government to respond to it. He has raised, you have raised. Sir, let the government respond to it. Please take your seat. Please take your seat, let him respond. Now, sir, now the leader of the house. whatever my friend, sir, what my friend John Vitas has said, this is a very normal law and order situation that we have to understand. I have been a student activist. I have been arrested many times from the classroom in emergency days when Congress party was ruling. I have been arrested. Mr. John Vitas, it is a normal situation. A student activist has to face, go back and take your those seat. who take law and order in their own hand, the police have to act accordingly, and the police has acted accordingly for those cases. They are trying to sensationalize. It is a normal law and order activity which the police undertakes, and any student activist who wants to do activism should face this. Even I have faced not once, many times. When there was emergency, I was arrested from the classroom, not once, but twice. So this is a very normal situation, sir. Now, Shriman R. Girirajan, through R. Girirajan ji. Girirajan ji, you have to speak, whether you like to speak or not, you tell me. You don't want to speak, then I am calling the other member. Shriman Madan Rathore ji. Shriman Madan Rathore ji. CPM issue ಇಲ್ಲ. सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से एक ऐसा विषय उठा रहा हूं जिसका सामना सबको करना पड़ रहा है। वो है कि जो ट्रैफिक व्यवस्था देश में सुधारने की जरूरत है, इस विषय पर मैं ये ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। हम अपना समय मैनेजमेंट करके निकलते हैं, लेकिन जो ट्रैफिक की समस्या का सामना जब करना पड़ता है तो यथा समय पहुंच नहीं पाते। कई बार ऐसी भी स्थिति बनती है कि जब समय अधिक लेकर के निकलते हैं और आसानी से जल्दी पहुंच जाते हैं तो वहां पर भी हमारा समय खराब होता है। इसके लिए ट्रैफिक मैनेजमेंट की आवश्यकता है। मैं आपके माध्यम से हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल जी शर्मा को धन्यवाद देना चाहूंगा कि अभी हमारे जयपुर में मेट्रो से फेज सेकंड का उन्होंने शिलान्यास किया, तो इसके लिए निश्चित रूप से ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार होगा। मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, राजस्थान के कोटा में इस प्रकार की व्यवस्था की गई है कि जो भी चौराहे हैं वहां पर या तो अंडरपास बना दिया या ओवरब्रिज बना दिया, ताकि कहीं पर भी सिग्नल पर रुकने की जरूरत नहीं पड़े। इस प्रकार की व्यवस्था राजस्थान सरकार ने की है। मैं इसके लिए राजस्थान सरकार को और केंद्र में हमारी केंद्रीय परिवहन मंत्री जी का भी धन्यवाद देना चाहूंगा। सभापति महोदय, कई देशों में हमने देखा है कि वहां पर लोग मेट्रो से सफर करते हैं और बड़े बड़े अधिकारी भी, चाहे कलेक्टर हो, एसपी हो या कोई मंत्री हो, वो भी मेट्रो से सफर